Morning students, welcome to the class. Students, today we start chapter 2 polynomials. पॉलिनोमियल क्या होते हैं? अभी पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. Monomial which has one term, binomial which has two terms, trinomial which has three terms, or more than two terms we say polynomial. But the exact definition of polynomial is an expression. What is the polynomial? An expression of the form an into x raised to power n plus an minus 1 into x raised to power n minus 1, an minus 2 into x raised to power n minus 2 plus dash 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 a1 x plus a0 is said to be a polynomial. So x is a variable and n is a positive integer. An minus 2 are real numbers. So this one is the definition of the polynomial. An expression of the form an xn plus an minus 1 xn minus 1 an minus 2 into x n minus 2 plus a1 x plus a0 is said to be a polynomial. Here x is a variable and n is a positive integer. an minus 1, an minus 2 dash dash an and a0 are the real numbers. Now types of the polynomial based on degree. डिग्री के बेस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितनी तरह की होती हैं? तो देखिए जिसकी डिग्री 1 होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. पहले लीनियर पॉलिनोमियल देखिए आप. लीनियर पॉलिनोमियल polynomial of degree 1 is known as linear polynomial. For examples, इसके एग्जाम्पल आप देखें 3x plus 2, 5x, 7x plus 9. all of these are the examples of linear polynomials having degree 1. यहाँ पे आप देख रहे हैं x की पावर 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है और इसमें भी x की पावर 1 है. मैक्सिमम 2 टर्म्स हो सकती हैं linear polynomial में. Now second, quadratic polynomial a polynomial
which has degree 2. जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जांपल्स x square plus 2x plus 3, x square plus 7x, x square plus 3. These are the examples of quadratic polynomials. देखिए आप यहां पे x square की डिग्री को देखेंगे तो इसकी डिग्री 2 है. If the highest power is 2, then it is quadratic polynomial. Now third, the cubic polynomial. A polynomial which has degree 3, जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं. और एग्जांपल्स हम लेंगे इसकी. फॉर एग्जांपल x क्यूब प्लस 7 x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7. All these are the examples of cubic polynomial. इन सभी में हम देख रहे हैं कि x की डिग्री 3 है. So these are cubic polynomials. All of these are cubic polynomials. Now students, biquadratic polynomial. A polynomial which has degree 4, उसको हम बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल लेंगे हम जिसमें आपको डिग्री 4 दिखानी है. Here the degree is 4, so it is biquadratic polynomial. 2x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. Here the degree of the polynomial is 4, so it is also biquadratic polynomial. X raised to power 4 plus 7x plus 3. Here the degree is also 4. तो ये भी आपकी biquadratic polynomial होगी. Now students, most important, the constant polynomial. The polynomial which has degree 0. जिसकी डिग्री 0 होती है हम उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जांपल्स जैसे आप लेंगे अगर 7, 5, 9, 213, all of these are the examples of constant polynomials. Here the variable is 0. We can write, for example, जैसे हमने 7 को लिखा, 7 को मैं 7 into 1 लिख सकता हूं. अब आप देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था किसी की भी पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है. तो इस 1 को मैं ऐसे लिख लेता हूं. Here degree is 0. तो क्लियरली आप देख रहे हैं कि यहां पे डिग्री कितनी आएगी? 0 आएगी. नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? मोस्ट इंपोर्टेंट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? द हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल.
known as degree of polynomial. तो ये कुछ टाइप्स पॉलिनोमियल्स की आपके सामने. Now types of polynomials based on number of terms. नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल की पहचान करनी है कि वो कैसी होगी. पहले आती है आपको मोनोमियल, which is one term is known as monomial. For example, 3x 7 6x square, all of these are the examples of monomials. So here we have one term. Second, binomials. Which has two terms. Two x plus 7, 3x square plus 2x. All of these are the examples of binomials. इसमें दो टर्म्स हैं. Now trinomials. Which has three terms. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लेंगे 3x square plus 2x plus 7. So it is the example of trinomial. It has three terms. And students, polynomial. डिग्री के बेसिस पे अभी जो हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे लिखते हैं, विच इज मोर देन 2 टर्म्स. नाउ बार बार कुछ वर्ड यूज हो रहे हैं. जैसे हम एक पॉलिनोमियल लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5. Here it is a polynomial and it has 3 terms. इसमें 3 टर्म है. यानी कोई भी पॉलिनोमियल टर्म्स से मिलकर बनती है और टर्म्स के भी दो हिस्से होते हैं. जैसे टर्म्स में here this one is the term and it is 3x square. So 3 is known as coefficient and it is known as variable. टर्म के दो हिस्से होते हैं, एक कोएफिशिएंट और एक वेरिएबल. मान लीजिए आपका यहां पे 7 कोएफिशिएंट है और x इसका वेरिएबल है. अभी नेक्स्ट जो है एक जीरो पॉलिनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल आपके सामने जिसमें which has one term and that is 0 and the degree of the geo polynomial is not defined. जीरो पॉलिनोमियल की कोई डिफाइंड इसमें नहीं करता है, क्योंकि देखिए आप कभी भी जीरो पॉलिनोमियल है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 5 इंटू जीरो विच इज वन टर्म, एक टर्म होती है. एंड डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि
जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होती है वैसे नहीं देंगे, क्योंकि जिसमें एक ही टर्म होती है, और बट इसकी जो जीरो है वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि किसी की भी पावर जीरो होती है तो हम 1 के बराबर लेते हैं, बट उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ जीरो हो जाएगा। यहाँ कांस्टेंट पोलिनोमियल को जीरो से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये जीरो आएगा, जिसमें जीरो टर्म होती है, विच इज टर्म जीरो, दैट इज नोन एज द जीरो पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं हम। इसमें देखिए सबसे पहले तो बेसिक्स जो मैंने करवाए हैं इससे पहले, उन्हीं का यूज होता है। बेसिक्स को आपने ध्यान से समझना है। बेसिक्स अगर क्लियर है आपको तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ अभी कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स, इनमें से कौन से एक्सप्रेशंस पोलिनोमियल्स हैं इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। वन वेरिएबल में कौन कौन सी पोलिनोमियल्स हैं और कौन सी नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका रीजन आपने देना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं एक जनरल आपको डेफिनेशन देना चाहूंगा पोलिनोमियल की। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, बस आपको समझना है इसको। जनरल डेफिनेशन में इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं। जनरल डेफिनेशन ऑफ द पोलिनोमियल विच whose degree must be a whole number। तो यहां स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात है कि उसकी डिग्री एक होल नंबर होनी चाहिए। अगर डिग्री नेगेटिव है या फ्रैक्शन में है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगी। तो यहां पे क्लियर देखिए आप, यहां पे हियर द डिग्री इज 2, होल नंबर, यहां पे डिग्री होल नंबर है, और वेरिएबल इज एक्स एंड वेरिएबल इज एक्स। देयरफॉर इट इज ए पोलिनोमियल। तो ये एक पोलिनोमियल होगी। यस, यस इट इज ए पोलिनोमियल। तो ये पोलिनोमियल होगी। नेक्स्ट में देखिए आप, यहां पे दो टर्म है। अब यहां पे इसकी डिग्री चेक करें हम, और यहां कुछ भी नहीं है तो हम इसको एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। कांस्टेंट टर्म है, हमें पता है कांस्टेंट टर्म को हम लिख सकते हैं √2 जैसे कांस्टेंट टर्म है उसको इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इसको हम लिखें अगर ऐसे, तो y² प्लस √2 इंटू 1, तो वापस ये वही का आएगा, √2 ही आपका आ जाएगा इससे। तो यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है आपको कि इसकी डिग्रीज 0 और 2, इसका मतलब होल नंबर है, और वेरिएबल यहां पे क्या है, y। तो यहां पे लिखेंगे यार डिग्री इज ए होल नंबर, पावर सॉरी डिग्री नहीं, डिग्री तो हाईएस्ट पावर के लिए यूज होता है। हियर एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट वर्ड लिखिए यहां पे, डिग्री यहां भी आप कैचिंग कर लीजिए उस एक्सपोनेंट मस्ट बी ए होल नंबर। तो यहां भी आपको डिग्री की बजाय एक्सपोनेंट लिखिए, हियर एक्सपोनेंट। पावर्स जो है वो एक होल नंबर है, 7 इंटू इसको एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, तो पावर्स 2 1 0, ऑल ऑफ दीज आर होल नंबर्स। तो यहां भी हियर द एक्सपोनेंट ऑफ पोलिनोमियल इज ए होल नंबर and variable is y। तो वेरिएबल y है यहां पे, तो हम कहेंगे यस इट इज ए पोलिनोमियल। रीजन हमने दे दिया इसमें, पोलिनोमियल क्यों होगी उसका रीजन भी दिया है। और इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए आप, मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू टी की पावर 1/2
प्लस t√2। पावर फ्रैक्शन में आ गई है। अगर पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। Here the exponents of polynomial is not a whole number। अगर होल नंबर नहीं होगा तो ये हम कहेंगे नो, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। ऐसे ही इस पॉलिनोमियल में देखेंगे हम, तो इसको मैं लिख सकता हूं y प्लस 2 इंटू, इस y को मैं ऊपर ले जाता हूं, इसका ऐसे जब हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर से नीचे लेके जाएंगे तो पावर्स का साइन चेंज जाता है, तो इसको हम लिखेंगे y की पावर -1 एंड हियर -1 इज नॉट ए होल नंबर। हियर its exponents not a whole number। Are not a whole number, therefore it is not a polynomial। इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। नेक्स्ट, अब आप देख रहे हैं यहां पे जो लास्ट आपका क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इस क्वेश्चन में पावर्स तो होल नंबर में है बट वेरिएबल एक नहीं है। Here its exponent is 10 and it is 3 and it is 15, so all of these are whole numbers, but here the variables are 3, x, y and t, so it is not a polynomial। We have 3 variables, हमारे पास 3 वेरिएबल्स है इसमें, एक x, y और t, therefore it is not a polynomial in one variable। इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगी वन वेरिएबल में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। Now we start question number 2, write the coefficients of x square। हमें कुछ पॉलिनोमियल दी गई हैं, इनमें आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो स्टूडेंट्स आपको सिर्फ x स्क्वायर को ढूंढना है। यहां चेक करिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। हियर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, लिख सकते हैं हम ऐसे। सो इज 2, पहले में कोफिशिएंट होगा 2। नेक्स्ट में आप देखेंगे इसको सिर्फ एक्स स्क्वायर को ही हमने देखना है, यहां कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए आप। हियर coefficient of x is -1। नेक्स्ट, सॉरी डिग्री नहीं है, यहां पे आप करेक्शन करिए, कोफिशिएंट पूछा गया था इसमें x स्क्वायर का, सो इट इज 1 एंड हियर दिस वन इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, not x is pi upon 2, so this one is the coefficient of x square। here x square है ही नहीं इसमें, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, अपनी तरफ से हम इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज हमारे पास है ही नहीं, 0। अब पूछा जाता है मेरे पास जेब में कितने पैसे हैं, तो मैं कहता हूं 0। कुछ बच्चे कहते हैं जैसे कुछ नहीं है जी, कुछ तो नहीं है, हमारे पास 0 पैसे हैं। तो यहां पे अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं 0x²। सो कोफिशिएंट इसका क्या होगा
here coefficient of x square is 0। तो स्टूडेंट्स ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, बेसिक्स पे बेस्ड हैं जो आप कर सकते हैं इजीली। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल। एक हमें बाइनोमियल का एग्जांपल लेना है ऑफ डिग्री 35, जिसकी डिग्री कितनी हो 35 डिग्री हो। तो एग्जांपल हम लेंगे बाइनोमियल के लिए। अब बाइनोमियल में यहां से एक चीज क्लियर होगी कि इसमें दो टर्म होनी चाहिए एंड उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। तो इसको हम कुछ भी ले सकते हैं। वी टेक एनी नंबर 3x raised to power 35 plus 7x. It is the binomial and its degree is 35. और कोई ले सकते हैं आप y raised to power 35 plus 2. Here it is also binomial and its degree is 35. तो इन क्वेश्चंस में आंसर्स वेरी करेंगे। आप कोई भी आप ले सकते हैं जिसमें दो टर्म हो और उसकी हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। नेक्स्ट हमें एग्जांपल लेना है मोनोमियल का। मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए और उसकी डिग्री कह रहे हैं 100 होनी चाहिए। तो मोनोमियल में एक टर्म होती है, हम जानते हैं। तो यहां पे हम कोई भी ले सकते हैं 7x raised to power 100 या y raised to power 100 या t raised to power 100 minus 6x raised to power 100। बट हमें यहां पे जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो 100 शो करनी है और मोनोमियल का मतलब एक टर्म होनी चाहिए। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोमियल्स। Now question number 4, write the degree of each of the following polynomials। आपको डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल्स की क्या है। तो हाईएस्ट पावर इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट यहां आप देख रहे हैं हाईएस्ट पावर 3 है। सो डिग्री क्या होगी इसकी 3। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री क्या होगी इसकी 2। इसमें आप देखेंगे हाईएस्ट पावर ये कांस्टेंट टर्म हो गई और इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं इसको। तो यहां पे हम लिखेंगे इट्स डिग्री इज 1 और यहां कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। सो हियर डिग्री इज 0 क्योंकि कांस्टेंट टर्म को हमें पता है। इसको मैं लिख सकता हूं 3 into 1 एंड वी कैन राइट 1 एज, क्योंकि हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था x raised to power 0 is equal to 1। तो यहां पे 1 की जगह x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसकी डिग्री जो है 0 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो विच वन इज लीनियर? यहां पे आप देख रहे हैं इसकी डिग्री 2 है। हियर इट्स डिग्री इज 2, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहां पे भी आपकी डिग्री 2 है। Its degree is 2, therefore it is quadratic polynomial। और यहां पे इसकी डिग्री भी 2 है। Its degree is 2, therefore it is quadratic polynomial। एंड नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे इट्स डिग्री इज 1, हियर इट्स डिग्री
is 1, therefore it is linear polynomial. जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। और यहां पे भी आप देख रहे हैं here it is degree is 1, so it is linear polynomial. Here degree is 2, so it is quadratic. And it is डिग्री यहां पे 3 है, so it is cubic polynomial. तो स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। टोटली इट इज बेस्ड ऑन द बेसिक्स, तो बहुत आसान है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे।